Number 1, Introduction to Finance and Financial Management. We have unit number 1, Introduction to Finance and Financial Management. उसमें फर्स्ट टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस. इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस. दूसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एंड तीसरा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म. Objectives of the firm. Then let us start with the unit number 2. Unit number 2, financial goal setting and time value of money. Financial goal setting and time value of money. उसमें फर्स्ट है फाइनेंशियल गोल सेटिंग. फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल गोल सेटिंग एंड दूसरा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. यूनिट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इसमें हमें कवर करना है कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग. यूनिट नंबर 4, फाइनेंशियल डिसीजंस. Here we are going to cover number 1, cost of capital, and number 2, capital structure decisions. Capital structure decisions. Okay, this will be your syllabus. Okay, now today we are going to start with the first chapter, that is today we are going to start with the first chapter, that is financial planning. Okay, finance, corporate finance for the business we are going to start today. So in introduction to finance, let us start with the introduction to finance. These all notes are provided you earlier in a Google Classroom. So don't worry about the notes. If possible, write it down in your notebook so it will be practice for you. Correct? And in addition to that, if you have any textbook, just see the heading and you can refer any textbook for notes. Okay, so let us start with the introduction to finance. Now, finance means what? Finance means funds, paisa, right? Finance means funds, paisa. Now, what is corporate finance? Corporate finance is a division of finance. Corporate मतलब कंपनी के लिए जो पैसा लगता है, वो पैसा कहाँ से सोर्स यानी कहाँ से कलेक्ट करना है, इस स्ट्रक्चर में उसको कलेक्ट करना है. जैसे शेयर्स में कितना कलेक्ट करना है, डिबेंचर में कितना लेना है, लोन कितना लेना है, ये डिसाइड करना. दैट मीन्स corporate finance. Not only source, how to utilize that funds is also included in the corporate finance. The corporate finance is primarily concerned with maximizing shareholders value. मतलब क्या कि corporate finance क्या कोशिश करेगा कि शेयर होल्डर्स को कम से कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स यानी डिविडेंड पे कर सकते हैं, ये कोशिश करेगा कॉर्पोरेट फाइनेंस.
Now what are the features of corporate finance? Number one, फाइनेंशियल प्लानिंग. कॉर्पोरेट फाइनेंस सबसे पहले तो क्या करता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा, यानी कंपनी के लिए कंपनी में कितना पैसा लगेगा, किस तरीके से पैसा कलेक्ट करना चाहिए, कितना पैसा कलेक्ट करना चाहिए, कितने पैसे का यूटिलाइजेशन करना है, कितना पैसा रिजर्व में रखना है, ये प्लानिंग कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंडर आता है. दूसरा, फंड रेजिंग. फंड रेजिंग मतलब एक ऊपर हमने प्लानिंग किया है कि हमें कितने पैसों की जरूरत है बिजनेस चलाने के लिए. सो हाउ टू रेज दैट फंड्स, whether to collect funds from bank loan, from debenture, from bonds, from issue of shares, that planning is also made by corporate finance. Now goal oriented, corporate finance is a goal oriented. Goal is already decided, matlab what is the goal, whether it is to give the services or for profit maximization. So according to that, finance is planning. The investing objective, कॉर्पोरेट फाइनेंस में ये भी देखा जाता है कि अगर एक्सेस फंड्स है, अपने पास एक्सेस फंड बचते हैं, तो कंपनी के बाहर अगर इन्वेस्ट करना है तो किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी प्लानिंग यहाँ पे किया जाता है. देन फाइनेंस ऑप्शन. अभी फाइनेंस ऑप्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो कंपनी को दो तरीके का फाइनेंस लगता है, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. Now fixed capital and working capital मतलब working capital means the expenses which are required for day-to-day activities of the business. Business के day-to-day activities के लिए जो पैसा लगेगा वो working capital है, जो normally short term fund से हम लोग collect करते हैं या short term loan से we can collect. Whereas business में fixed capital की जरूरत, जैसे फिक्स एसेट परचेस करने के लिए या कोई बिल्डिंग परचेस करने के लिए, फर्नीचर परचेस के लिए क्या लगेगा, मशीनरी परचेस करने के लिए फिक्स कैपिटल लगेगा. जनरली ये फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म सोर्स जैसे शेयर कैपिटल है, डिबेंचर से यहाँ से कलेक्ट किया जाएगा. देन कॉर्पोरेट फाइनेंस ये भी देखता है कि जो भी फंड्स हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है. Then, seventh feature of corporate finance is corporate finance manage and control the expenses and the use of funds also. यानी जो भी फंड्स हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं नहीं या नहीं, इसका वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, एज पर ऑर्डर तो ये यूटिलाइज हो रहे कि नहीं, वो ये भी कौन देखता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस देखता है. बिजनेस मैनेजमेंट, वेदर टू मैनेज बिजनेस प्रॉपरली और नॉट, मॉडर्नाइजेशन टेक्निक अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं, डाइवर्सिफिकेशन है, एक्सपांशन है, टैक्सेस का पेमेंट प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, ये सब भी कॉर्पोरेट फाइनेंस देखेगा. एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस इज डायनामिक इन नेचर, मीन्स कोई भी एक थिंग्स वो यहाँ पे नहीं सोचता है, वो प्लानिंग करता है. देन चेंजिंग द बेस ऑफ चेंज इन प्लानिंग है. देन फाइनेंस सुपरविजन करता है, यूटिलाइजेशन ऑफ सेविंग प्रॉपरली होता है कि नहीं देखता है. ये सभी एक्टिविटीज कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंडर आएंगे. नंबर 10, कनेक्टिंग विथ अदर डिविजन्स. कॉर्पोरेट फाइनेंस अलग अलग डिविजन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को एडवर्टाइजिंग से, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट को मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को किसी और. We just talk for a minute. Okay, let us continue with our lecture. Let us start with the need and importance of corporate finance. Why corporate finance is necessary? Number one is managing risks. There are many types of risks in the business. So that such type of business risks is managed by insurance, and for this proper planning should be done, which is for which corporate finance is necessary. Again, corporate finance is necessary for proper decision making. For research and development, we also require some funds, and that funds is managed through the proper corporate finance management. Minimizing मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फाइनेंसिंग फैसिलिटीज अगर प्रॉपरली हमारे पास है तो वी कैन मिनिमाइज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थ्रू बल्क परचेस कर सकते हैं हम लोग रॉ मटेरियल का.
या गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन ले सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो सकती है, कम हो सकती है. फॉर रेजिंग कैपिटल ऑल्सो कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नेसेसरी. कैपिटल कैन बी रेज थ्रू शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स. इफेक्टिव फंक्शनिंग, बिजनेस को अगर इफेक्टिवली फंक्शन करना है तो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस नेसेसरी है. देन फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस कॉर्पोरेट फाइनेंस इज ऑल्सो नेसेसरी. शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स अगर बिजनेस के सेटिस्फाई कर रहे हैं तो भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस अगर बिजनेस के सेटिस्फाई करने हैं तो भी ये नेसेसरी है हमारे पास. कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नेसेसरी. देन मार्केटिंग अ कंपनी प्रोडक्ट, मार्केटिंग अ कंपनी और प्रोडक्ट. कॉर्पोरेट फाइनेंस इज इम्पोर्टेंट टुवर्ड्स एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट, प्रमोटिंग कंपनी. यानी इन शॉर्ट अगर हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करना है तो उसके लिए हमें अलग से फंड्स की जरूरत है और वो मैनेज करने के लिए भी कॉर्पोरेट फाइनेंस की हमें जरूरत होती है. शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देना है, इंटरेस्ट देना, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देना है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है, जिसके लिए हमें फंड्स मैनेज करना जरूरी है और उसके लिए प्रॉपर कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजमेंट होना जरूरी है. जस्ट गो थ्रू इट. नीचे मैंने आपको लिंक भी दिया है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है ये लिंक पे जाके आप नेट पे भी ये सर्च ले सकते हैं. ओके, 2 मिनट दे रही हूँ मैं आपको, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी तक जो हमने लिया उसमें. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फाइनेंस फंक्शन इन बिजनेस. फाइनेंस फंक्शन इन्वॉल्व, फाइनेंस का काम क्या है बिजनेस में. ओके, 10th पॉइंट का फीचर आपको चाहिए फिर से. ओके ओके, वहां से स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग. डिविडेंड एंड इंटरेस्ट फीचर में हमने देखा था डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. बिजनेस को शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देना पड़ता है और डिबेंचर या लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है. तो दोनों ही सूरतों में उनके पास ये दोनों पेमेंट करने के लिए पैसों की जरूरत होनी चाहिए. उसके बाद लोन के रिपेमेंट के लिए बैंक को रिपेमेंट करना है, उसके लिए इंस्टॉलमेंट के लिए पैसों की जरूरत है. ये सब मैनेज कॉर्पोरेट फाइनेंस करता है. ओके, देन हम लोग देखते हैं अभी फाइनेंस के पर्टिकुलर फाइनेंस के फंक्शंस क्या है. फिर नंबर 1 पहला तो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा डिविडेंड डिसीजन. ऊपर जो हमने सब फीचर्स देखे हैं उसके ऊपर से हम लोग वी कैन इजीली पॉइंट आउट दैट फाइनेंस में मेनली 3 फंक्शंस किए जाते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस. यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब क्या, कैपिटल बजटिंग, कैसे बजट करना है किसी भी कैपिटल का, किस तरीके से. देन फाइनेंसिंग डिसीजन में इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यानी फंड्स कैसे रेज करना है वो हमें यहाँ पे देखना है. एंड डिविडेंड डिसीजंस में डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग्स. रिटेन अर्निंग्स मतलब जो भी हमारे पास पैसा आया है उसमें से कितना डिविडेंड पे करना है एंड कितने रिटेन अर्निंग्स यानी रिजर्व में पैसा रखना है. ये 3 मेन डिसीजंस फाइनेंस फंक्शंस के अंडर आते हैं. नाउ व्हाट विल बी द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर देन. सो हम लोग देखते हैं फाइनेंस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हेल्थ मतलब फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी कितना है, फाइनेंस कितना अच्छा है फॉर्म में, ये फाइनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंस प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए. So let us see the functions or role of finance manager. Finance manager occupies an important position in expected to manage funds. मतलब फाइनेंस मैनेजर को सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि उसने फंड्स मैनेज करने चाहिए एंड उसने पॉइंट आउट करनी चाहिए वो सिचुएशन जहां पे हमारा फंड्स आइडल पड़ा हुआ है जिसका हम लोग प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. Then deciding the capital structure, फाइनेंस मैनेजर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है. आगे हम लोग टॉपिक्स में ये सब सीखने वाले. कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना मतलब क्या कि मुझे अगर 100 करोड़ की जरूरत है, मुझे अगर 100 करोड़ की जरूरत है
तो वो कहाँ से मैनेज कर सकती हूँ मैं? अगर मुझे 100 करोड़ की जरूरत है तो वो कहाँ से मैनेज कर सकती हूँ मैं? तो वो यहाँ पे हमें देखना है। मीटिंग स्टॉप हो गया तो मैं फिर से रिपीट करने वाली हूँ, फिर ज्वाइन करना है आपको, मैं लिंक भेजती हूँ। तो फाइनेंस मैनेजर का सेकंड फंक्शन क्या है? देखो, ही इज नॉट he is to point out situation where funds are being kept idle or proper use of funds are not made. तीसरा है estimating business requirements of funds, मतलब कितने रिक्वायरमेंट्स है वो देखना है। डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, पहले तो हमने डिसाइड किया कितने फंड्स की जरूरत है, फाइनेंस मैनेजर डिसाइड कर रहा है, समझो 100 करोड़ की जरूरत है। देन हाउ टू कलेक्ट दैट फंड्स, शेयर से कैसे कलेक्ट करना है, डिबेंचर से कितना करना है, लोन से कितना करना है, बॉन्ड से कितना कलेक्ट करना है, वो डिसाइड करना है। मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है एसेट्स में या कहीं और इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी के बाहर, तो कितना इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये डिसीजन फाइनेंस मैनेजर लेगा। मेक डिविडेंड पे आउट डिसीजन, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसमें से कितना डिविडेंड पे करना और कितना रिजर्व में देख रखना है, वो डिसीजन फाइनेंस मैनेजर लेगा। कीपिंग टच विद स्टॉक मार्केट, इफ द कंपनी इज लिस्टेड, स्टॉक मार्केट के टच में रहना है कि अपने शेयर्स का प्राइस कम ज्यादा हो रहा है क्या। और मेनली कैश मैनेज करना है, अपने पास जो कैश है बिजनेस के पास वो प्रॉपरली मैनेज करने का काम है फाइनेंस मैनेजर का। इवेल्युएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना भी हम लोग कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके रिटर्न में हमें पैसा मिल रहा है क्या, ये इवेल्युएशन करना है। देन मैक्सिमाइज द वेल्थ फॉर कंपनी शेयर होल्डर्स, यानी कंपनी के शेयर होल्डर जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको प्रॉपरली रिटर्न्स मिल रहे हैं क्या, वो देखना। देन कंपनी को प्रॉपर क्रेडिट मिल रहा है क्या, कंपनी का टैक्स प्रॉपरली पे किया जा रहा है नहीं, ये सभी आते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर। ओके, नाउ नेक्स्ट विल बी व्हाट विल बी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन। अभी ये हमने देखा फाइनेंस मैनेजर के फंक्शन। अगर कंपनी छोटी है तो ये सभी काम फाइनेंस मैनेजर खुद करेगा, लेकिन अगर कंपनी बड़ी है तो इन सच अ केस फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन कैसे रहेगा तो वो हम लोग यहाँ पे चार्ट से आराम से देख सकते। देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन, सबसे पहले अपेक्स बॉडी ऊपर आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ना उसके भी ऊपर आएंगे शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर सिलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स में से सिलेक्टेड मेंबर से ही है। तो सबसे पहले आपको अगर नोटबुक में लिखना है तो सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर्स, वो सिलेक्टेड मेंबर्स आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा, एक या दो, जो बिजनेस को डे टू डे एक्टिविटीज मैनेज करेगा। और उसके अंडर मेनली आते हैं ट्रेजरर एंड कंट्रोलर। अगर कंपनी बड़ी है तो सभी मैनेजिंग डायरेक्टर या फाइनेंस मैनेजर सभी चीजें नहीं कर सकते, तो मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे दो ऑफिसर्स है, ट्रेजरर एंड कंट्रोलर, दे विल मैनेज द फाइनेंस, फिर उनके नीचे अदर ऑफिसर्स रहेंगे। नाउ लेट अस सी द रोल ऑफ ट्रेजरर। ट्रेजरर का रोल क्या है, तो फॉर्मुलेट होल कैपिटल। देखो, हमने फाइनेंस मैनेजर के जो फंक्शंस ऊपर देखे वो डिवाइड करके दिए यहाँ पे। ट्रेजरर क्या करेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा, देन लिक्विड एसेट्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ कैश मैनेज करने का जिम्मेदारी ट्रेजरर का है। देन बेसिकली ट्रेजरर एज ए नेम सजेस्टेड एक्ट एज अ कैशियर, पूरा कैश मैनेजमेंट ये करेगा। Then he has the authority for signature on payment of checks, चेक्स अप्रूव करने की अथॉरिटी इसके पास है। रिकंसिलेशन इन बैंक अकाउंट यानी बीआरएस करने का अथॉरिटी इसके पास है। ओवरऑल क्रेडिट फंक्शंस ऑफ फर्म देखने की अथॉरिटी ट्रेजरर के पास है। देन कंपनी के पॉलिसी डिसीजंस मेनली ये लेता है। He also maintain relationship with bankers and vendors, अलग अलग लोगों से रिलेशनशिप अपार्ट फ्रॉम कंपनी, बैंकर्स जो हमें लोन दे रहा है वो, और जो हमें गुड्स पर सेल कर रहे हैं उनके पास रिलेशन मेंटेन करने का काम ट्रेजरर करेगा। नाउ व्हाट इज द कंट्रोलर, कंट्रोलर क्या करेगा,
तो ये सभी जो ट्रांजैक्शंस हैपनिंग हो रहे हैं बिजनेस में, ये प्रॉपरली लेजर में रिकॉर्ड्स हो रहे हैं कि नहीं, ये देखने का काम लेजर में, सब लेजर में लिखने का काम कंट्रोलर करेगा। देन टैक्स पेमेंट, बिजनेस का इंश्योरेंस निकालना, ये सब देखने का काम भी कंट्रोलर का है। बेसिकली वो एक्टिविटीज पे कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे। देन ही कीप्स ट्रैक ऑफ कंपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी ने किया है तो उसका ट्रैक रखना, उसके ऊपर प्रॉपर रिटर्न आ रहे कि नहीं ये देखना, ये सब काम कंट्रोलर का है। देन रिसीवेबल्स है, वो डिस्काउंट एंड रिसीवेबल्स, एजिंग रिसीवेबल्स यानी बिल्स रिसीवेबल का टाइम खत्म हो गया तो उसका पैसा आ रहा है कि नहीं ये देखना। देन कीप इन द रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉइज, बेसिकली कंट्रोल का काम क्या है, डे टू डे एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। देन है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, दैट इज सीएफओ, इन दोनों के ऊपर है सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल। ये चार्ट में आपने देखा उसके हिसाब से तीन चीजें, तीन ऑफिसर इंपॉर्टेंट हमने देखा, ट्रेजरर, कंट्रोलर, तीसरा है सीएफओ। अभी सीएफओ कैन इट इज द सीनियर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द बिजनेस एक्शन, फाइनेंशियल एक्शंस ऑफ द बिजनेस। उसके ड्यूटीज क्या है देखो सीएफओ के, प्रोवाइड लीडरशिप एंड डायरेक्शन मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंस एंड अकाउंटिंग टीम, अकाउंटिंग एंड टीम को डायरेक्शन देना है कि किस तरीके से काम करना है अकाउंटिंग टीम को। देन स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन टू द सीईओ प्रेसिडेंट, कुछ स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन देना है, कुछ सुझाव देना है तो सीईओ को दे सकता है। देन मैनेजिंग द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड बजट, एडवाइजिंग ऑन लॉन्ग टर्म बिजनेस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी प्लानिंग करना है तो उसके लिए एडवाइस देना है। एंड एचआर पॉलिसी और आईटी से रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर है तो उसको अगर रिवाइज करना है, रिव्यू करना है, तो ये सभी काम सीएफओ के अंडर आता है। ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर सिलेबस। इसके नोट्स मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यू कैन आस्क मी। तो वी विल टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक एंड फिर नेक्स्ट चैप्टर जो इससे बहुत ही इजी है वो हम लोग स्टार्ट करने